Last time driving this car before gone for 2 months. 2 months के लिए repair होगी unfortunately. Awesome, thank you. Yeah. They did recalibrate the glass, so the door glass. After almost 1 month, Tesla is back along with KD, of course. So it took almost 1 month. Expected could have been 2-3 months. अगर आप मार्कस ब्राउनली की कार को देखोगे, his car took almost 3 months. And ऐसा क्यों हुआ कि मेरी कार को only 1 month लगे as compared to 2 to 3 months expected? What was the reason? अगर in fact if you go to reddit.com, if you check Tesla experiences, वहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी लोगों ने पोस्ट किया है that their Tesla Model 3 went for 2 to 4 months without they even telling them कि कितना टाइम लगेगा because parts are delayed. मेरे फ्रेंड की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ and they haven't gotten their car from the last 3 months. The car is so clean, just like new now. उन्होंने मैट्स तक साफ किए हैं एक रिपेयर के लिए. Everything is so seamless. You would think that chip shortage is related, but reality ये है कि chip shortage and supply chain are completely independent. Supply chain parts की काफी सालों से delayed है by Tesla, and they're not even able to give parts in 2 to 3 months. तो 9 to 10 months तक वहाँ पे cars पड़ी हुई हैं and no update on them. भाई ये Tesla का तो बुरा ही हाल हो गया है. Oh my gosh. इतनी टेस्लास यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखी. इन्होंने बड़ी जल्दी रिपेयर कर दिया. थैंक यू कोलिजन कैलिपर. टेस्ला इधर. ओ माय गॉश. ये पोर्शा. But I got lucky, and let's see what are the things they did to get it done on time. First of all, huge credit to Katie for doing the research कि अटलांटा में कहाँ पे best service मिल सकती है to get Tesla repaired. Thank you so much for that. You're welcome. I mean, I kind of owed it to you since it was my fault, you know, so. So let's start with the paperwork. The dent was right here. यहाँ पर गाड़ी अंदर चली गई थी and from here it was outside. Because of that, जब आप drive कर रहे होते हो, it makes a sound. Because of high speed, जब आप 80-90 miles an hour की speed पे होते हो, it makes a sound on the back, जिसके कारण इंटरप्शन होती थी. इट वॉज एन अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस ड्राइविंग. तो इस कारण ज़रूरी था मेरे लिए रिपेयर कराना. एंड यू विल नॉट बिलीव, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मॉल डेंट बिटवीन द रेयर डोर एंड रेयर पैनल उन्होंने कितने ज़्यादा पार्ट्स को हिलाया. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट. So the first thing that they have removed and reinstalled is the hood. So this is the front. उसके बाद and next is the cowl part जहाँ पर wipers रखे जाते हैं. These are really weird names. I don't know why cowl was supposed to be replaced. बहुत अजीब parts इन्होंने हिलाए हैं. Next is the rear wheels. So उन्होंने both rear wheels as well as front wheels. So उन्होंने दोनों के दोनों टायर निकाल दिए थे just to test or something like that. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा. It was completely unrated but still they did it. Now let's move on to the roof. So पूरी की पूरी roof they actually removed the roof and reinstalled it. तो इससे आपको पता चलता है कि जब भी आपकी गाड़ी रिपेयर होती है इतने ज़्यादा पार्ट्स चलते हैं. दैट्स व्हाई दे से दैट रीसेल वैल्यू कैन गो डाउन एंड दे अपडेटेड इन द कारफैक्स रिपोर्ट. नाउ उसके बाद गोइंग ऑन आफ्टर द रूफ दे एक्चुअली रीइंस्टॉल द सीट्स. सो दीज आर द रेयर सीट्स. इन्होंने पूरी की पूरी सीट्स को हिलाया अलॉन्ग विद द ट्रैक्स. सो ट्रैक इज समथिंग जहाँ पर सीट्स मूव करती हैं. जब आप सीट को आगे पीछे करते हो इट मूव्स ऑन द ट्रैक. सो दे रिप्लेस्ड और रिप्लेस ऐसे निकाल के दोबारा उन्होंने टैक्स तक लगाए. It's just shocking. And then next part is the rocker, pillars and the floor. So गाड़ी का floor, pillars are these are the pillars, and rocker, what is rocker? I don't even know. I don't even know. Yeah, okay. Rocker को भी उन्होंने दोबारा लगाया. Moving on with next part, that is the front door. Now finally, after removing all those parts, they came to the rear door. इतनी सारी चीज़ें निकालने के बाद they removed the rear door and then the quarter panel. Then the front door as well. I'm shocked front door को क्यों निकाला. And then after the rear bumper को भी निकाल दिया. And they had to do it. Do you know why? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब उन्होंने when they repainted this side, it was looking different as compared to this side as well as this side. तो पेंट करने के बाद अगर ये पूरा पेंट भी कर देते दरवाजे, even after painting this whole door, उन्हें लगा कि it is different. It looks different from this door. So उन्हें पूरी साइड को पेंट करना पड़ा. Because of that, they had to remove all those parts. And now talking about the expenses. First of all, expected expenses were $12,000. इतना ज़्यादा खर्चा लग सकता था. My Toyota Corolla is $10,000. उससे ज़्यादा खर्चा इस कार पे लग सकता था just because of minor scratches
between two doors and थोड़ा सा dent के कारण I was shocked. I was expected and एक्चुअल में एक्सपेंसेस डिफरेंट हैं बिकॉज दे वर एबल टू रिपेयर पार्ट्स के लिए वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे वर एबल टू रिपेयर दे सेड दे यूज्ड उन्होंने एक्चुअली हथौड़ा मार कर हैमर से डेंट ठीक नहीं किया दे वर एबल टू डू इट विद देयर मशीन दे सेड दे प्लेन्ड इट आउट उसके बाद दे एक्चुअली स्क्रैप्ड इट सो मेनी टाइम्स टू मेक इट इवन उसके बाद उन्होंने पेंट किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन उन्हें नए पार्ट्स यूज करने ही नहीं पड़े एंड ऑल द पार्ट्स दे यूज्ड वर एक्चुअली कॉस्टिंग $664 और टोटल खर्चा so let's do the breakdown $664 for the parts then the miscellaneous cost $5 labor क्योंकि US में labor is a big thing they charge $100 to $200 per hour of labor that they do for us उसके बाद labor refinish repainting cost was $614 labor for the body was $2,280 and then labor for mechanical part was $108 and उसके बाद paint की cost थी $400 total is around $4,000 and majority of the expenses were paid by insurance मुझे देने पड़े Katie and I had to pay for the deductible which was $500 and total expenses still is $4,000 but we had to pay $500 so what do you think were you scared Of the cost? yeah Of 500 or like before? before Yeah, I was really scared because I read online, 3,000, 5,000 5,000, things like that. So, I mean, it was without insurance, it would have been something like that. But Yeah. luckily, we have good insurance. Yay! and thank you for paying Katie you didn't have to I insisted but thank you for paying I mean, it was my fault. So, yeah, it seems fair. And honestly, it could have been a lot worse. So. ओनली वन कंप्लेन रिपेयर के लिए कि उन्होंने टायर प्रेशर नहीं भरा मतलब गाड़ी पूरी क्लीन कर दी बट टायर प्रेशर इज सपोज टू बी 42 pascals एंड हर जगह 33 हो गया व्हेन वी गिव इट टू देम इट वाज लाइक 38 39 अभी की अभी हवा भरवानी पड़ेगी एंड काफी लोग पूछ रहे थे कि व्हाई केटी डजंट कम इन द व्लॉग बिकॉज़ शी इज आल्सो अ स्टूडेंट नाउ एट GSU सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क सो यू टेक मास्टर्स इन Yeah, I'm getting a master's in applied linguistics and teaching English to speakers of other languages. And I have learned so much from your course as well, like similarities between Turkish, Arabic, French, Spanish, so many languages. Yeah. And why Hindi and Punjabi are very difficult for me Yes. because the word order is all different. Yeah. एंड कल हम जा रहे हैं ओहायो एंड जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये साल ख़त्म होने वाला है पता ही नहीं चला तो अगर आप अभी भी अपनी फिटनेस जर्नी कंटिन्यू कर रहे हो नेक्स्ट ईयर अपने गोल्स बनाने से पहले ये ईयर के गोल्स डेफिनेटली कंप्लीट करो एंड उसके लिए माई प्रोटीन तो है ही बिकॉज ब्लैक फ्राइडे सेल इज ऑन द गो एंड यू कैन यूज माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अभी हमने देखी दृश्यम 2 कैसी लगी तुम्हें यार? मुझे तो बढ़िया लगी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है बस प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने दृश्यम 1 अभी देखी है तो उनके लिए फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत रिवाइविंग सेम 2 अक्टूबर वाली चीज़ रिपीट होती है तो मुझे वो थोड़ा सा लगा पर ओवरऑल लास्ट सेकेंड हाफ माइंड ब्लोइंग सस्पेंस बहुत अच्छा है हाँ बहुत अच्छा राइटिंग बहुत अच्छी। यहाँ पे फ्री एयर है क्यूटी में जहाँ पे हम भरने आए हैं यहाँ पे प्रेशर आ रहा है तो हवा बाहर निकल रही है इससे बाहर ही निकलेगी ना प्रेस करो ना उसको दबाऊं हाँ वो कितना दबाना है, कैसे प्रेस करना है? सब सिखाना पड़ेगा इसको देखो कितना बढ़ गया पास कर कुछ नहीं पड़ रहा है कुछ नहीं पड़ा भाई टायर ना फट जाए देख करते रहो टायर नहीं फटेगा भाई 29 उल्टा डाल रहे हो कम हो रहा है कम हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है उल्टा साइड से डालो ना देखा मैंने कहा ना मैं ये परफेक्ट कर रहा है ये अच्छा कर रहा है अब बराबर कर रहा था लेवल देखते रहो जब भी आवाज नहीं आ रहा था तभी बराबर है कम हो रहा है हैं 24 pascals हो गया यार येलो से रेड हो गया नहीं ट्राई नहीं करते वेट करते उन्हें बुलाते हैं यार वी हैड टू क्लिक दिस बटन ओके थैंक यू सॉरी अबाउट दैट थैंक यू अब आ रही ना आवाज अब मजा आएगा भाई खुल ही नहीं रहा ओके 24 पे ही अभी 24 मेजर नहीं हो रहा अभी ऐसे ही हवा छोड़ता है जिम में कितना हो गया अभी 33 हुआ ना 33 तो 42 तक जाना है अभी नहीं अभी तक नहीं हुआ अभी तक सिर्फ एक ही टायर हुआ है भाई इतनी मुश्किल से यार ये सिस्टम इतना फॉल्टी है कि टाइमर लगाना पड़ेगा फाइनली अब हर टायर में 41 है ये क्यूटी वाले भी लोग कहेंगे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं ऊपर लिखा हुआ था कि क्लिक टू स्टार्ट पता ही नहीं था चार्जिंग पे लगा दिया नेक्स्ट टू अस इन द अपार्टमेंट इज BMW 530
ई जो मैं पहले सोच रहा था इलेक्ट्रिक लेने की, वो साथ में लगी हुई है।